Hello. Today we are going to discuss a very important topic, which is why is heart disease increasing in India? And we see a lot of young people dying of heart disease. We are going to discuss this topic with very senior cardiologist, Dr. J.K. Sharma, who has 30 years of experience. He is going to enlighten us about this thing happening. Heart attack happens because there is an abrupt cessation of the blood in one of the coronary arteries, and that is by the laceration of the plaque which is there in the coronary artery, and the entire blood flow gets blocked totally, so the muscle start dying. So in case it is not treated properly, the muscle gets dead, or even it can cause a death of the patient also. Okay. And how is it treated? Treatment is basically by two methods. One is by we give the drugs that is known as the clot busters, or by mechanical means, by that is we do it in the cardiac cath lab by putting a wire and then balloon and a stent. That is primary angioplasty. Which method is better of the two? Scientifically, the primary PTCA, that is the PTCA, by opening the artery with a wire and the balloon, that is much superior and better method. It has been proved beyond doubt. So, but the problem is that this method is not available everywhere. In smaller hospitals, is not available. So we have to depend on the clot busters, that is thrombolytic therapy. Can we lead a normal life after heart attack? Yeah, definitely. In case we call this opening of the artery reperfusion therapy. In case somebody has acted very smartly and quickly, and he goes to the hospital, where he reports to the hospital within 120 minutes, that means within 2 hours, and he undergoes that reperfusion therapy either by thrombolytic therapy or by primary PTCA, and that is successful, and he follows the other sort of adjunctive treatment like anti-platelet agents. He can lead a normal life and becomes a important member of the society, as well as he can look after the family. And what are the symptoms of heart attack? Symptoms of heart attack are that the patient is getting a lot of chest pain which is very severe, and it is not relieved by taking a rest. तो रेस्ट करें पेशेंट को कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। दर्द इतना ज़बरदस्त है, और वो कहाँ होता है, छाती के बीच में, दोनों कंधों से दोनों बाजुओं में फैलता है, फिर पीछे इसमें जाता है पीठ में, और फिर अपर जो हमारा जबड़ा है वहाँ तक जाता है, और पेट में थोड़ा अपर एब्डोमेन में वहाँ तक जाता है। इसके साथ में उसको पेशेंट को बहुत पसीना आता है, और उसके साथ उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्पिटेशन होती है, कई बार बेहोश भी हो जाता है। ये सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। Symptoms of heart attack, and how is it diagnosed? Symptoms of heart attack are that there is a very severe acute retrosternal behind the breastbone. There is a severe pain, and this pain radiates to both the shoulders, both the arms, and it goes at the back also, plus lower jaw also it can radiate. Now this is accompanied by उसके साथ पेशेंट को बहुत पसीना आता है, और साथ में उल्टी भी आती है, और पेशेंट बेहोश हो सकता है, ये भी देखा गया हमने। लेकिन ध्यान रहे, कुछ पेशेंट्स में ये टिपिकल सिम्टम नहीं होते हैं, लाइक जिनकी ओल्ड एज ज़्यादा है, 75 साल 80 साल है, तो उसमें ये इस तरह का चेस्ट पेन नहीं होता, और लेडीज़ में। और थर्ड इज़ दोज पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है, तो उसमें उनको थोड़ी वीकनेस आती है, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि बहुत वीक हो गए हैं, बेहोश होने वाले हैं, तो ये उनमें थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे सिम्टम्स इन 3 बंदों में नहीं आते, डायबिटिक, old age and ladies. Collapse, sudden cardiac arrest, and there is sudden death. Sudden death. Okay. Now these things are being used very commonly and interchangeably. However, these 3 things are totally different. Cardiac collapse कभी हो सकता है, जैसे किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हुई कहीं से और एकदम बीपी नीचे आया, तो वो पेशेंट गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, तो उसको कार्डियक कोलैप्स बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट होता है जब किसी वजह से हार्ट के जो मैकेनिकल फंक्शन है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। मैकेनिकल बंद होने से हार्ट का जो बीपी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पल्स नहीं रहेगी, और साथ में उसके मरने के चांसेस बहुत हाई होते हैं अगर उसको टाइमली उसको ट्रीटमेंट ना मिला जाए, CPR और साथ में DC शॉक ना दिया जाए। ये है कार्डियक अरेस्ट। और सडन डेथ जो है, सडन डेथ का मतलब है कि पेशेंट एकदम कोलैप्स होके और विदिन सेकेंड विदिन मिनट्स वो डाइज। उसके थोड़े अलग कारण हैं, जैसे लोगों को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट के अंदर मसल्स इतने ज़्यादा मोटे हो जाते हैं
कि उसमें वो ब्लड का फ्लो जो ठीक नहीं रहता, और जो पेशेंट उसके साथ एक्सरसाइज करता है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो इतना बढ़ जाता है कि उसका ब्लड फ्लो रुक जाता है, और फिर ब्लड फ्लो रुकेगा तो हार्ट की जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है। तो ये रीज़न है। दूसरा, कई बार पेशेंट जो यंग बंदे हैं, जो एथलीट्स हैं, वो खेलते हुए उनकी चेस्ट में एकदम इतना ज़बरदस्त कुछ लगता है, कुछ चोट लगती है, तो उससे भी उनकी डेथ हो जाती है। और तीसरा, कुछ ऐसी होती हैं जो शुरू से ही जो जन्मजात हैं, जिसमें कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जो ईसीजी की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग क्यूटी बोलते हैं उसको, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, तो उससे भी लोग सडन डेथ हो जाती है। एक मिनट पॉज करके ना उसको चला दो आपने। सो हाउ कैन वी डायग्नोज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक में एक तो सिम्टम जो मैंने डिस्कस किए हैं डिटेल में, ये सिम्टम्स होते हैं एक। दूसरा, इमीडिएटली ईसीजी करते हैं, 13 लीड ईसीजी। और तीसरा, हम कुछ कार्डियक एंजाइम्स का एस्टिमेट करते हैं ब्लड टेस्ट लेके। इन तीनों में से दो अगर आ जाते हैं हमारे पास, जैसे पेशेंट के सिम्टम्स टिपिकल हैं हार्ट अटैक के, और हमने देखा भाई ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है उसका मतलब है उसको हार्ट अटैक है। 3 में से 2 अगर प्रेजेंट हो जाती हैं, या सिम्टम्स या ईसीजी या साथ में उसके बायोमार्कर जो बढ़े हुए हैं, ये अगर हो जाते हैं, CPK-MB, ट्रॉप टी है, ट्रॉप आई है, विच इज़ अवेलेबल इन ऑल स्मॉलर हॉस्पिटल इवन, तो हम डायग्नोज कर देते हैं हार्ट अटैक है, एज पर द डेफिनेशन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। So what first aid should we provide to the patients coming with heart pain or problems? फर्स्ट एड में ये है कि सपोज़ पेशेंट एक अकेला है घर में, या साथ में उसकी स्पाउस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है, बेहोश होने वाला है, तो उसको साइड में टर्न कर दीजिएगा, ताकि वो अपने वो वॉमिटस अपने लंग्स में ना ले ले। एक दूसरी बात, पेशेंट को रीएश्योर करना है कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको अस्पताल में लेके चल रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसको सबसे पहले आपने अरेंजमेंट करना है कि वो नज़दीक वाले अस्पताल में पहुँचे। और उससे पहले अगर आपके पास एस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोली पड़ी है, उसको घोल के पानी में वो उसको पिला दीजिएगा। और फिर जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करिए कि उसको ट्रांसपोर्ट लेके और फटाफट हॉस्पिटल, नज़दीक वाले हॉस्पिटल में लेके जाना है। कई बार कहीं कुछ नहीं मिलता तो पेशेंट बोलता है कि मैं खुद ही गाड़ी चला के, वो नहीं करना है, वो दैट इज़ वेरी डेंजरस, ही शुड नॉट ड्राइव। आस्क हिज स्पाउस या उसके फ्रेंड या कोई कोलीग आसपास उनको बताए और वो गाड़ी में बैठ के उसको लेके जाएं। तीसरी बात, अगर उसको मान लो एकदम बेहोशी आती है और अकेला ही है, तो ज़ोर ज़ोर से खांसी करे, उससे भी उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है, ताकि नेक्स्ट वाला ट्रीटमेंट के लिए टाइम मिल जाता है। तो आप अगर ऐसा करेंगे, और सबसे ज़रूरी बात जो हमें ये प्रॉब्लम देती है हमारे भारतवर्ष में, कि लोग जब चेस्ट पेन होता है रात के 3-4 बजे, तो वो क्या करता है, उठता है, उसके बाद वो गोली खाता है डाइजिन की, और कहता है शायद मेरे को पेट में थोड़ा सा एसिडिटी है। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो फिर सो जाता है, सुबह देखते हैं कि वो हार्ट अटैक इतना ज़बरदस्त था कि अब तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हुआ ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहले आपको जो ही सिम्टम आते हैं, आपने 10 मिनट के अंदर ये डिसाइड करना है कि मैंने हॉस्पिटल में पहुंचना है। हॉस्पिटल में पहुंच के एडमिट भी नहीं करें, कम से कम एक ईसीजी करवा लें, तो उससे हमें पता चल जाएगा भाई हार्ट अटैक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ऐसा करते हैं तो जब आपका अगर किसी पेशेंट की एज ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या पहले उसको हार्ट अटैक आया है, तो आप नंबर उस नज़दीक के अस्पताल के या आपके फिजिशियन जिसके पास आप जाते हैं रिव्यू के लिए, उसका नंबर अपने पास रखिए। तो यही आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको रिंग करोगे, मेरे को ऐसे ऐसे है और मैं आ रहा हूँ, तो उससे आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपने उनको बता दिया, वो अलर्ट रहेंगे। अगर कार्डियक कहते अलर्ट करनी है तो सारा सिस्टम दैट गेट्स एक्टिवेटेड, इमरजेंसी वाला, तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये बात ज़रूरी है। हमने देखने में आया हमारे भारतवर्ष में, लोग रात को उठेंगे, चेस्ट पेन है, एक गोली खाई कोई एस्प्रिन की या डाइजिन की, उसके बोले मेरे पेट में थोड़ा सा आई थिंक एसिडिटी ज़्यादा है, तो ये मेरे को हार्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये गलती ना करें बिल्कुल। So according to you, what has changed in these years as the incident of heart disease is increased? अगर देखा जाए तो 1960s में हमारे पास जो हार्ट अटैक आते थे, उसमें से 100 में से 30 बंदे मर जाते थे। 60s की बात कर रहा हूँ। फिर 70s में उन्होंने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो रेगुलर हो जाती है और हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, तो उन्होंने फिर ईजाद किया कॉरोनरी केयर यूनिट। कॉरोनरी केयर यूनिट में ये है कि सिस्टर्स को, डॉक्टर्स को ये समझाया कि भाई ऐसा ऐसा रेजमिया होता है, तो इसका ये ट्रीटमेंट दो। तो उससे वो 30% जो मर जाते थे, अभी मॉर्टेलिटी रेट हुआ 15%। उसके बाद भी फिर हमारे पास एस्प्रिन आई, ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आई, साथ में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी आई। तो अब जो बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, मैं यूरोप के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मोर्टेलिटी हार्ट अटैक की 7 से 8% है।
लेकिन अभी भी लोग लगे हुए, पैथोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन हैं और इंटेंसिविस्ट हैं, सब लगे हुए हैं कि 7 और 8% को भी नीचे लाया जाए। उसके तरीका एक ये देखा गया उन्होंने कि जो हम मेडिसिन देते थे वो कंटिन्यूस फ्लो में आता था। जैसे एल्टीप्लेज था, उसको आप 1 घंटा चलाओ, उसके बाद दूसरे हैं तो उसको भी चलाओ देर तक। अभी उन्होंने एक न्यूअर मेथड से मेडिसिन बनाई जो बोलस थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी है, जैसे रेटिप्लेज है, टेनिक्लेप्लेज है, उसको आपने एक ही शॉट में दे देना है तो जल्दी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके मेडिकल एरर नहीं होती, डोजेज एरर नहीं होती। आपने एक देना 10 यूनिट तो 10 यूनिट लगा दो उसको आएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड हुआ। दूसरा उन्होंने देखा कि अगर हम इसको पेशेंट्स को इतना अवेयर करें कि भाई ये आप जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो, जल्दी ट्रीटमेंट कराओ, उसके बावजूद भी ये ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं आया है। तो इन्होंने देखा कि जहाँ पेशेंट है, मान लो यहाँ से आपके 30 किलोमीटर है आपके मेन हॉस्पिटल से, अगर आप उस पेशेंट के पास पहुँचो और उस पेशेंट का ट्रीटमेंट वहीं करो, तो उन्होंने देखा कि जितनी आपकी मोर्टेलिटी कम हुई उसमें 17% और कम कर सकते हैं। क्योंकि आपने क्या करना है, 2-3 फिजिशियंस आपके हॉस्पिटल में, एक फिजिशियन को बैठाइए गाड़ी में, एम्बुलेंस लेके सारी दवाइयाँ लेके पहुँच जाता है पेशेंट के पास। जैसे लेट से कि दारूहेड़ा में हुआ, किसी को हार्ट अटैक है, उसने रिंग कर दिया, ECG भेज दी, आपने देखा हार्ट अटैक हुई, तो अब गाड़ी में बैठाइए फिजिशियन को, एक नर्स को, और सारा सामान लेके वहाँ पहुँचे, वहीं पे आप थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दे दो। उसके बाद पेशेंट को डालो गाड़ी में, ले आओ। तो उससे देखा गया ये बहुत अच्छा मेथड है। अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास इतने साधन हैं कि आप पेशेंट के पास पहुँचो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये हुआ है। और दूसरा, फिर नए नए मेडिसिन आई हैं, वो भी अच्छी मेथड हैं। नए नए कार्डियक कैथ खुल गए हैं, प्लस बहुत कार्डियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग हुई है जो आप प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर सकती हैं। हमारे यहाँ देश में 600 के आसपास कार्डियक कैथ लैब हैं, और आजकल जो प्राइमरी PTCA कर रहे हैं दला, तो ये एक बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट हुई है हमारे देश में। Is it possible to prevent heart attack? या इट्स वेरी मच पॉसिबल। इनफैक्ट अबाउट जितने हार्ट अटैक हैं 70 to 75% आर प्रिवेंटेबल। और सिंपल मेथड्स करने हैं आपने। नंबर 1, डाइट में आपने हल्का खाना खाना है। और दूसरा, अगर हम सारे संसार में देखें तो 5 ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग स्वस्थ रह के 100 साल जीते हैं। तो लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की कि वो क्या करते हैं। जैसे एक यहाँ पे है कैलिफोर्निया में, एक कोस्टा रिका में है, एक इसमें जापान में है, सदर्न जापान में ओकिनावा करके एक जगह है। वहाँ पे तो लोग, मतलब जो रिटायर हो के आता है तो वो ये नहीं बोलता कि मैं रिटायर हुआ हूँ, वो आके अपना वही काम करता है, खेत में जाता है, वहाँ अपनी सब्ज़ी उगाता है, खुद लेके आता है सब्ज़ी, और सारे काम खुद करता है और एक्टिव रहता है सारा। मतलब ये नहीं होता, रेस्ट नहीं होता है। और सबसे दूसरी बात ये है कि जो खाना खाते हैं वो लोग, वो रिसर्च में पाया गया कि वो 100% अपने पेट को फुल नहीं करते। खाना खा रहे हैं तो उनको जब पता चला भाई 80% मेरी भूख चली गई है, तो 80% में रुक जाते हैं। नंबर 2। नंबर 3, वो जो प्रोसेस्ड फूड है वो नहीं खाते, सिंपल नेचुरल फूड खाते हैं। और चौथी बात, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। आज सब्ज़ी ले आए, आज बाज़ार से ये ले आए, आज फ्रेंड्स के साथ आपने कोई प्रोग्राम कर लिया हंसी मजाक का। तो उनकी एक्टिव लाइफ है, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, और खाने में जो है वो एक अच्छा खाना है, जो हार्ट हेल्दी खाना है। तो दैट्स वाई इट हैज़ बीन फाउंड आउट कि दे लिव इन लॉन्ग एंड वेरी हेल्दी लाइफ। उनको ये डिजीज़ नहीं होती। और इन्फ्लामेशन है बेसिकली, तो उनके जो आपके जो खाना खाते हैं उसमें ओमेगा-3, ओमेगा-6 फैटी एसिड्स की भरपूर मात्रा है, तो उसमें बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होता। तो दैट्स वाई इसमें देखा गया ओकिनावा में तकरीबन 100 में से आपको 5 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो 100, उनकी उम्र 100 से ऊपर है और एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो इसी तरह दूसरे सेंटर हैं, कोस्टा रिका है, जिसमें कैलिफोर्निया है और इटली है। तो ये सारे लोग यही वाला तकरीबन सिस्टम अपनाते हैं, जिससे आप इसमें ब्लू डाइट बोलते हैं, ब्लू लाइन डाइट। तो ये आप कर सकते हो। और अगर हम देखे जाएँ तो हमारे जो बाप दादा थे वो यही वाला डाइट खाते थे, एक्सरसाइज करते थे रेगुलर, और ये वाला खाना खाते, मोटा अनाज खाना है। उसके साथ में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ देश में देखा गया है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते। आपका डाइट ठीक है, आपकी एक्सरसाइज ठीक है, आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। प्लस एक और इशू ये है हमारे यहाँ कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं करवाते।
आप 2-2 साल बीत गया, आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब है आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए, वो आपकी ईसीजी करेगा, आपका बीपी देखेगा, आपका ब्लड शुगर रिकॉर्ड करेगा। तो ये जो डिजीज़ जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कोरोनरी रिस्क फैक्टर्स हैं 5-6, तो इसको अर्लीस्ट स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट है उसी शुरू में ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बजाय इसके कि आप इतनी एडवांस स्टेज में जाके वहाँ जाओ। तो ये आपने मेथड जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना है साल में एक बार, और एक्सरसाइज करनी है ज़रूर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि आप कम से कम हफ्ते में 5 दिन आधा घंटे आपने एक्सरसाइज करनी है, और बेस्ट एक्सरसाइज हार्ट के लिए हैं ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग। ये वाली एक्सरसाइज करिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। वैसे मैं आपके टाइम में जैसे चाइल्डहुड में जो मदर्स होती थी तो वो एक्स्ट्रा घी एक्स्ट्रा ये सब करती थी, या अभी करने लगी हैं ये सब चीज़ें? ये अभी ज़्यादा हो गया है। अभी ज़्यादा है। जैसे हम फर्स्ट ईयर से ही एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाता है, और फिर ये जो एज होती है 4-5 से लेकर 10 तक हम ये बोल के बच्चों को खिलाते रहते हैं पराठे खिलाओ, ये तो उम्र है बढ़ने की है। तो मुझे लगता है उसी टाइम पे ही हो जाता होगा ये सब। नहीं, 12 साल जब बच्चा होता है तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाती है। बुक्स में तो फर्स्ट ईयर से लिखा हुआ है, एट द फर्स्ट ईयर। नहीं नहीं, मतलब 12 साल हाँ, में हाँ। यू कैन डिटेक्ट। अगर आप वो करके देखो ना, हाँ। तो मैं वो लाया नहीं अपना ये लैपटॉप, उसमें 12 साल से 15 साल के बच्चे में आपको क्लियरली नज़र आएगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस हैज स्टार्टेड। अब लोग क्या करते हैं 35 साल में उसको हार्ट अटैक आया कि भाई इसको ये डिजीज़, नो, द डिजीज़ हैज स्टार्टेड मच अर्लियर। सो यू थिंक कि हमको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में सीटी एंजियोग्राम और ये सब कराना चाहिए? नहीं, उसमें 2 तरह के हैं। नंबर 1, अगर किसी पेशेंट के रिलेटिव्स को, उनके पेरेंट्स को हार्ट अटैक आया है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, तो उसके चांसेस हार्ट अटैक के ज़्यादा हो जाते हैं। उस टाइम में अगर आपको लगे कि भाई ये मेरे को सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो आई थिंक दैट यू कैन गो फॉर ये ओपीडी में हो जाता है अगर सीटी एंजियो करवा के देखें। प्रिवेंटिव करा लेना चाहिए, जैसे मुझे लगता है कि 30s में अपना नहीं, एक बार प्रिवेंटिव ये नहीं कि हर बंदे को क्योंकि करवा। बाहर जहाँ पे भी जिसको थोड़ा सा भी एंजाइना या फिर ऐसा अनस्टेबल एंजाइना या फिर ऐसा मतलब अगर दूसरे डायग्नोसिस में एसिडिटी हो रही है तो वो सीटी एंजियो करा लें। तो हमारे यहाँ पे इतना नहीं, जैसे नहीं, वो तो डिपेंड करेगा, बट हर बंदे को सीटी एंजियो करवाने की जरूरत। यहाँ पे कुछ सिम्टम लगे ना आपको कि भाई ये एंजाइना हो जैसे सकता है, जिसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जो हु इज ईटिंग बैड फूड, फ्राइड फूड, आउटसाइड फूड, तो उसको करा लेना चाहिए। नहीं, सीटी एंजियो करवा के देख लें तो बेटर रहेगा कि उसको पता चल जाएगा कि भाई ये डिजीज़ है। तो प्रोग्रेशन तो आप यू कैन एटलीस्ट, हाँ, नहीं, आपको पता चल जाएगा ना कि भाई 30% ये ब्लॉक आ रहा है, तो इसका मतलब यू कैन प्रिवेंट इट फर्दर। तो ये बड़ी अच्छी मेथड है कि एक बार करवा लें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप फिर वो जाएंगे उसमें जिम में और एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, सडनली यू फाइंड योर कोलैप्स। सीटी एंजियो चल रहा है। सजेस्ट एनी एज ग्रुप जब आपको ये करा लेना चाहिए एज ए प्रिवेंटिव? नहीं, आई फील दैट बाय 30 years एंड ऑल यू मस्ट स्टार्ट द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो उसमें जब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आपके पास भी लोग आते होंगे, तो आपको पता चल जाएगा भाई इसमें थोड़े रिस्क फैक्टर्स हैं और इसके डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। देन यू गो फर्दर, और आप ये कर सकते हो, स्ट्रेस एको कर सकते हो, टीएमटी कर सकते हो। वहाँ से आपको लगेगा भाई पॉजिटिव है तो देन यू गो फॉर एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो। और जहाँ पे आपको लगे भाई ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सिम्टम्स इनके स्ट्रॉन्ग है, फैमिली हिस्ट्री है, तो गो फॉर सीटी एंजियो। ओपीडी में हो जाता है आजकल। यंग पेशेंट्स का कुछ भी एक फोकस होना चाहिए ना, कि अभी तो जो लोग जिम भी कर रहे हैं यंग पेशेंट्स, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो The issue is we must have seen there are guys who are about 30, 32, 35 and very good body because they are doing gym and they are eating that sort of, जो ये वे प्रोटीन्स हैं, they are harmful है। तो ये कोई मतलब नहीं है कि जिसकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक है उसका हार्ट भी ठीक है, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो सबसे बड़ी इशू ये है कि हमारे जो यंग हैं इंडियंस, उसमें देखा गया है कि दे हैव मोर्टेलिटी रेट four times more than the what is happening in US और ऑस्ट्रेलिया एंड फिनलैंड। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारे देश में जो यंग बंदे हैं उसमें देखा गया, स्टडीज़ पाई गई कि मोस्टली जिनको हार्ट अटैक हुआ है वो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, तो ये बड़ा कारण है। और दूसरा, एकदम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, उनको थोड़ा बहुत एंजाइना चल रहा है और वो सडनली जैसे नहीं मैं अभी ये बन जाऊँगा, बिल्कुल ठीक होऊंगा, वो जाके जिम में बैठता और एक्सेसिव एक्सरसाइज वो नहीं करनी है। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करो, आप ब्रिस्क वॉक करो, साइकिलिंग करो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, तो ये आप करिए। और एक ये ज़रूरी है
कि आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करवाइए। हो सकता है आपको जन्मजात से हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, आपके मसल सारे हार्ट में इतने बड़े हैं कि वो रोक रहे हैं ब्लड का फ्लो, तो और आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें रिदमिया हो जाएगा, सडन डेथ। तो ये ज़रूरी है कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूरी हैं। सेकेंडली एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। ज़्यादा ये नहीं कि आप जिम में जाके आप बैठो, हाँ जी आज मैंने इतने लगा दिए, वो नहीं, आप रेगुलर करो, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करो। आने दो बेटे उसको, कट कर देगा, कट कर देगा। आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए बट रेगुलर रहिए उसमें, एक्सरसाइज में आपने रेगुलर रहना है। और थर्डली आपने प्लांट बेस्ड जो है फूड वो खाइए। फ्रूट्स हैं, मौसम फ्रूट्स आपके जो रीजनल फ्रूट्स हैं जो आपके वहीं उगते हैं वो खाइए, और आपके सैलड का वो बढ़ाइए। प्लस आप खाइए, जो खाना खाते हैं तो 80% तक खाइए, 20% छोड़ दीजिएगा। तो आई थिंक ऐसा करने से लोग वहाँ रह रहे हैं आपके साथ में 5 ऐसे ब्लू जोन हैं जहाँ पे लोग 100 साल रहते हैं और फिट रहते हैं, पूरा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि बेड पे हैं लेटे हुए, नहीं, वो पूरा काम कर रहे हैं, एंजॉइंग लाइफ। वो क्या करते हैं, यही 4-5 चीज़ें बस। सो